Sabrawal ji, Chairman of Capital Market and भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। मैं स्टेज पे उपस्थित सभी अतिथियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत लैंप लाइटिंग से करेंगे। तो सभी अतिथियों को रिक्वेस्ट है कि आप सर प्लीज अपने दिए की तरफ आ जाइए, तो हम कैंडल से दिया लाइटिंग कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Pankaj Rai, the regional head of the North region of Choice Broking. With over 20 years of experience in the financial market, Mr. Rai has established himself as an expert in the industry. He holds an MBA in Marketing and Finance from Mumbai University and MA in Economics. As the regional head for the North region at Choice Broking, Mr. Rai is responsible for driving business development and growth in region. He has played an instrumental role in expanding the company's presence in North India and strengthening his relationship and clients and partners. We are honored to have Mr. Rai with us today, and we look forward to his insights and expertise on the financial market. Please join me in welcoming him to the stage. तो पंकज जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप सभी गेस्ट का वेलकम कीजिए और अबाउट द चॉइस आप बताएं। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी, आप मुंबई से हम सब लोगों के लिए आए और इतना बढ़िया प्रोग्राम का फ्लो आपने बनाया और आपने जो सब लोगों को वेलकम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा कि चॉइस ग्रुप ने दिल्ली में शुरुआत करी है और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम कैसे अनकॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, वो आज के इस सेशन में हमें सुमित बागड़िया जी बताएंगे। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। So, respected guests and investors, it gives me immense pleasure to welcome you all to this investor awareness program hosted by Choice Parivar. This program is in association with NSDL and PhD Chamber of Commerce, Capital Market and Commodity Market Committee. As the host of this event, I, Pankaj Rai, Regional Head for North Choice Broking, extend my sincere welcome to each one of you.
We are delighted to have some of the most distinguished personalities in the financial industry with us today. We welcome MD and CEO of BSE, Sri Sundaraman Ramamurthy ji. Unfortunately, he have changed his program because of he was busy somewhere. So Mr. Patil is there with us from BSE as our chief guest for this event. We also welcome Shri BK Sabharwal ji, Chairman of Capital Market and Commodity Market Committee of PhD Chambers. Now from Choice Group, I would like to welcome our respected Managing Director, Shri Kamal Poddar ji, our Chief Operating Officer, Shri Sunil Bagadia ji, our Head of Research, Shri Sumit Bagadia ji, and our EVP, Shri Lalit Jain ji. I would also like to give a special thanks to Shri Prashant Wagal ji. He all the way comes from Mumbai, and he is the Executive Vice President of NSDL for gracing us with his presence to this investor awareness program. Choice Group has been conducting investor awareness program across various locations in India under the theme My Choice, My Wealth and My Future. Today we are organizing this program in Delhi as a part of this series. Our theme emphasizes that the key to building a secure financial future is to make the right choice. By choosing the right investment partner and advisor, we can create wealth that help us achieve our desired future. Let me now tell you little about the Choice Group. Choice International Limited is a listed company on BSE and NSE with over 85 branches and more than 30,000 business partners across India. The group operates in three major verticals: broking distribution, investment banking, and consultancy business. In broking, the Choice Group is among the top 15 broking firms in India. It also offers mutual fund and insurance to retail and insurance and retail loan. The second vertical is investment banking, in which Choice holds Category 1 merchant banking license and has successfully launched many IPOs in the past and also have number of IPOs in the works. The third vertical of Choice Group is consultancy vertical. In consultancy vertical, we provide management consultancy and audit services for big organizations through SK Patodia Associates. We also provide financial infrastructure and consultancy for approximately 14 state governments. Apart from Choice, we also have a group company, Bike Hospitality Limited, which is listed on both BSE and NSE. Bike International has around 18 veg resorts across India. So this is all about Choice Broking. And at last, with immense pleasure, I would like to say that we extend our heartfelt appreciation to each one of you for joining us today. We trust that this program will provide you with the valuable insight and help us make an informed decision. So thank you all for gracing this occasion. थैंक यू पंकज जी फॉर नाइस वेलकम. अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर बीके सब्रवाल जी को, जो हमारे चेयर कैपिटल मार्केट एंड कमेटी के मेंबर हैं. तो मैं सर को कहूँगा कि सर प्लीज़ आइए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए. थैंक यू. गेस्ट श्री समीर पाटिल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिन्हें शायद अपने सर्विस कैरियर में MCX और BSE मिला के 1000 से ऊपर शायद इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बोलने का सौभाग्य मिला हुआ है. श्री प्रशांत वाघेल जी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट NSDL, श्री सुनील पटोदिया जी, चीफ ऑफिसर ऑफ द चॉइस ब्रोकिंग, सुमित पटोदिया जी, सुमित बगड़िया जी, रिसर्च हेड, ललित जी, बिजनेस हेड ऑफ चॉइस ब्रोकिंग. मैं अपने सामने देख रहा हूं कि NSDL के नॉर्थ हेड सुनील उत्रेजा जी भी हमारे बीच में हैं. रस्तोगी जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी हमारे बीच में हैं. और बहुत दिनों बाद मैं पंकज जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू करना था और 6:30 बजे
हमारा 400 से ऊपर वाला हॉल भरा हुआ है। तो चॉइस ब्रोकिंग के, मैं 1 मिनट जरूर कमल जी माफी चाहते हुए लूंगा, चॉइस ब्रोकिंग के को फाउंडर सुनील पटोदिया जी, जिनका आकस्मिक निधन पिछले वर्ष हो गया था, वो मेरे पुराने मित्रों में से थे। पंकज जी कुछ दिन मेरे पास आए पहले और बात की कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम करना है, ऑफिस का इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने उनको यही कहा कि शायद सुनील पटोदिया जी के सम्मान में मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी जगह पर और एक अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर पाएं। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे बीच में बैठे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर के और हमारी जॉइंट सेक्रेटरी, जिन दोनों के प्रयासों से हम एक अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ कर पाए हैं। मैं पीएचडी चैम्बर के बारे में बता दूं कि 118 साल पुराना चैम्बर है। सभी चैम्बर जितने भी हिंदुस्तान में हैं, जो पहले 3 नेशनल लेवल चैम्बर हैं, CII, फिकी और एसोचैम, उनसे भी पुराना चैम्बर है। पहले 118 साल पहले ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ऐसे पीएचडी शुरू हुआ और अब हमारी प्रेजेंस 20 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में है। आप आज कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट कमेटी, जिसको मैं देखता हूं, इसके बीच में हम यहाँ बैठे हैं, उसके साथ मिलकर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम नियमित रूप से पीएचडी में ऐसे प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए ही 4 तारीख को ही हम NCDS के साथ एक स्पाइसेस पे प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। 6 तारीख को यूग्रो कैपिटल बम्बई के साथ SME पे एक प्रोग्राम किया जा रहा है। और अभी चीफ बिजनेस ऑफिसर समीर पाटिल जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बात चल रही थी, तो वो अपना सेंसेक्स का फ्यूचर और जो बैंकिंग सेंस का भी फ्यूचर जो चालू 15 तारीख से कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम जल्दी उनके साथ यहाँ करेंगे। अभी पंकज जी से बात हो रही थी रीजनल हेड से, तो हमने उनको बताया कि हमारे ऑफिसेस नॉर्थ में जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ में हैं और हमारे सब जगह ऐसे हॉल भी हैं। तो उनके साथ तय हुआ कि हम जल्दी ही इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चॉइस के साथ सुमित बगाड़िया जी की प्रेजेंस में और पीएचडी कैपिटल मार्केट कमेटी के साथ चंडीगढ़ और लखनऊ में भी करेंगे। वैसे तो मुझे भी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है और मैं कई विषयों पर बोलता रहता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन था, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर एनमी का चेयरमैन था, CPI कमोडिटी ब्रोकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। पर मुझे लगता है कि आज का दिन हमें कमल पोद्दार जी और सुमित बगाड़िया जी को ही देना चाहिए। इसलिए मैं पीएचडी के बिहाफ पर चॉइस की मैनेजमेंट को यहाँ आने का स्वागत करता हूँ और अश्योर करता हूँ कि आपने, मुझे पता है कि 3 स्टॉक ब्रोकिंग ब्रोकर्स मेंबर्स जो हैं दिल्ली में पिछले 1.5 साल में एक्वायर किए हैं और इसके अलावा शायद 3 आपने भारतवर्ष में और एक्वायर किए हैं। और निश्चित रूप से हम, क्योंकि बहुत से मेंबर अब ऐसे हैं कि कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ने की वजह से
अब अपनी टिकट सरेंडर कर रहे हैं, तो मैं कमल पोद्दार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप आज 15वें नंबर पर हैं तो निश्चित रूप से पीएचडी के साथ और दूसरी एसोसिएशन के साथ मिलकर आप 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 10वें नंबर पर और 3 साल के अंदर भारत में 5वें नंबर पर पहुंच जाए। धन्यवाद। के बारे में क्या कहना, मैंने इनिशियली जानबूझकर उनके बारे में नहीं बताया था क्योंकि जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे तो ही इज़ द पर्सन, उन्होंने हर एक चीज़ों पे देखा कि प्रशांत इवेंट फ्लो बता क्या प्रोग्राम है, उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया। उनका एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा आपको। ही इज़ अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन होल्डिंग डिग्री ऑफ LLB and MBA. He has vast experience of about 50 years of working in financial market. 50 साल का एक्सपीरियंस आपने देखा होगा क्या है। He is a managing committee member of PSD Chamber of Commerce and Industry and ASO CHM. Mr. Sabharwal is the chairperson of PSDCCI Expert Committee on Capital Market and Commodity Market. He was the national president of CPAI and chairman of Federation of Indian Stock Exchanges. He had been on the board of directors and has been chairman of the northern region of ANMI. He was also a director in Delhi Stock Exchange. He is often invited as a visiting faculty in many MBA institutes. NIRC of ICAI and ICSI. He is regularly invited to speak about capital market. जैसे उन्होंने कहा कि उनको ज़्यादा बात करने की आदत है, but seriously experience है तो yes experience झलकता है। He has excellent relationship with the ministers, bureaucrats and regulators, SEBI and Reserve Bank of India. He had shared dias with them on behalf of CPAI, PSDCCI, NMI, DSE and ASSO CHM. So this is about the Sabharwal जी, एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। अभी जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनके बारे में क्या कहना। He is our MD, Mr. Kamal Poddar ji. Under the leadership of Mr. Kamal Poddar, a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India, the Choice Group has flourished as an financial service provider for over a decade. Mr. Poddar has been instrumental in the company's evaluation from a CA practice firm into a full-fledged financial service hub. And he has fostered a culture of innovation at the Choice Group through his commitment to the principle of Sarva Shrestha and or excellence. As a result, the Choice Group has consistently grown and added a new series of its portfolio, establishing itself as a leading provider of financial services both in India and internationally. Mr. Poddar's meticulous approach has been key to the company's success and growth. तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप लीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। उनके बारे में कुछ मैं 10 पंक्तियां कहना चाहूंगा। भाई, जिनकी जुबां पे है सरस्वती, जिनकी जुबां पे है सरस्वती, शब्द शब्द में है नूर, हमारे एमडी कमल सर का स्वागत कीजिए, तालियां हो भरपूर। सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच और हिंदुस्तान के पावर सेंटर, देश की राजधानी और हर व्यक्ति के दिल में बसने वाले इस दिल्ली शहर में पधारे आप सभी लोगों का आज की इस इन्वेस्टर अवेयरनेस समिट में मैं चॉइस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है आप सब केवल और केवल सुमित बगड़िया को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन आइसक्रीम खाने से पहले पूरी प्लेट खाली करनी पड़ती है और सब कुछ होने के बाद ही आइसक्रीम का मजा आता है। माई चॉइस, माई फ्यूचर, माई वेल्थ, हमारे इस कार्यक्रम की थीम है। पूरे देश में हम ऐसे सेमिनार्स करते हैं, जब आप इस हॉल से वापस बाहर जाएंगे
तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ अच्छा साथ में लेके जाएंगे। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपको नहीं पता है, लेकिन देखने के नजरिए को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम बीमार होते हैं तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है तो बढ़िया से बढ़िया वकील करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया से बढ़िया टीचर लगाना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे पूरे जीवन की सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का समय आता है तो हम अफवाहों के बेस पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हम एक 500 रुपए की चप्पल खरीदते हैं तो 4 चप्पल पहन के देखते हैं, ब्रांड चेक करते हैं, बराबर चल रही है नहीं चल रही है चेक करते हैं, और 5 लाख रुपए के शेयर खरीदते समय हमें पता नहीं होता है कि कंपनी काम क्या करती है। हमें इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, हमें भी क्लाइंट ऐड करने हैं। हम भी चाहते हैं कि क्लाइंट खूब सौदे करे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सौदे उसको पॉजिटिव एनर्जी दे, उसकी वेल्थ क्रिएट करे। हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 है सेविंग्स के मामले में। दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग है इंडियंस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे मिथ हैं हमारे दिमाग में। एक ही चीज चलती है, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है? दिल्ली के इस इलाके में या किसी भी अच्छे इलाके में आज से 20 साल पहले अगर 10 लाख रुपए में कोई प्लॉट मिलता था 2003 में, आज 2023 में हम बैठे हैं, 10 लाख रुपए में अगर कोई प्लॉट मिलता था तो आज कितने का हुआ होगा? सरोवाल सर, दिल्ली में किसी भी अच्छी लोकेशन पे 2003 में अगर कोई 1 करोड़ का फ्लैट मिल रहा था, 10 लाख छोटी अमाउंट हो जाएगी, 1 करोड़ का अगर कोई फ्लैट या ऑफिस मिल रही थी वो आज करीब करीब कितने की हो गई होगी? 6 से 7 करोड़। 6-7 करोड़ की। और कोई ज्यादा? 10 करोड़ की। और 100 करोड़ की। सर मैं रहता बंबई हूँ, दिल्ली आता जाता रहता हूँ। चलो मान लिया 100 करोड़ की, कितनी प्रॉपर्टी? लेकिन कैपिटल मार्केट में मैं आपको ऐसी 200 कंपनियां बता सकता हूं जिन्होंने 500%, 500 टाइम से ज्यादा रिटर्न दिया है। सब बिल्कुल, ये बाजार सबके लिए 9:15 बजे खुलता है और सबके लिए 3:30 बजे बंद होता है। बीएससी के मेंबर यहाँ बैठे हैं। सर ऐसा है कि कुछ स्क्रिप्ट किसी के लिए है, कुछ स्क्रिप्ट किसी के लिए, ऐसा है कुछ? सर बस ये मिथ ही चेंज करने के लिए हम आए हैं। हमारी कंपनी की टैगलाइन है, आप कीजिए कामयाबी की तैयारी, बाकी हमारी जिम्मेदारी। आप अफवाहों पे जिस दिन ध्यान देना बंद कर देंगे आपको वो सारी कंपनियां दिखने लग जाएगी। इसी बाजार में जो सबके लिए 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है, सारी की सारी कंपनियां सबके लिए खुली हुई है। इसी बाजार में राकेश जी झुंझुनवाला जैसे बिलियनियर बनते हैं और इसी बाजार में लोग लॉस करके सुसाइड भी करते हैं। फर्क केवल हाउ टू यूज आवर हार्डकोर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, असेट क्लास का चयन, ये सारी जो भ्रांतियां हमारे दिमाग में सेट है। आदमी 9:15 बजे कोई कंपनी के 5000 शेयर खरीदता है, समझो L&T के 5000 शेयर खरीदता है, और 9:20 पे फोन करके पूछता है क्या लग रहा है L&T? और 150 साल पुरानी कंपनी 5000 शेयर लेते ही 10 मिनट में चेंज थोड़ी हो गई।
लेकिन ये एक अलग डिलेमा है। जो डीलर होता है वो डीलर का तरीका अलग होता है। आप 100 रुपए में 5000 शेयर खरीदो, थोड़ी देर में अगर वो 103 रुपए हो गए तो वो ये नहीं बताएगा कि 103 हुए। उसका फोन आएगा, सर 15,000 रुपए आ रहे हैं, बेच दूं क्या? तो आदमी सोचता है यार अभी तो फोन किया था, अभी तो कपड़े वपड़े पहने ही नहीं, इतनी देर में 15,000 रुपए आ रहे हैं, बिठा बिठा फटाफट बिठा। सोचता है देख क्या फर्स्ट क्लास काम है, 15,000 रुपए कमा लिए तुमने। वही अगर अब 97 हो जाता है तो वो ये नहीं बोलता कि सर 97 हो गया, बेच दूं क्या इसको। वो फोन करता है सर ये 97 हो गया। और जो इन्वेस्टर है जिसने जिस अफवाह के बेस पे उसको खरीदा है, उसका नॉलेज अपग्रेड होता रहता है 97 नहीं, वो तो देखिए 1-2 रुपए तो ऊपर नीचे होता ही है, टेंशन मत ले, अपने पास खबर एकदम पक्की है। थोड़ी देर बाद में फोन आता है सर वो 94 हो गया। 94 निफ्टी क्या है? निफ्टी को है सर, निफ्टी उठा। हाँ तो निफ्टी के कारण ही हुआ है, बाकी खबर एकदम पक्की है, टेंशन लेने की जरूरत है। तो निफ्टी डाउन है ना, उसके लिए ही हुआ होगा। थोड़ी देर बाद फोन आता है सर 89 हो गया। 89 ना, निफ्टी भी नीचे है। यूरोप क्या खुला? यूरोप उसके शेयर का साकेत से लेके आर के पुरम तक ही मतलब नहीं हो, लेकिन रात को 3 बार उठ के डॉ जोन्स देख के सोता है। और जब वो 84 से वापस 99 आता है तो बेच के दूसरा शेयर ले लेता है। 100 क्रॉस नहीं होने देता बिल्कुल भी। हम ये कोशिश कर रहे हैं विद द ऑल रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस कि जितनी ज्यादा हो सके ये अवेयरनेस लोगों को दें। सुमित बगड़िया, यंगेस्ट एनालिस्ट इन द इंडस्ट्री, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अवार्ड इनको मिले हैं। लगातार आप लोग सारे चैनलों पे इनको देखते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब सुमित को सुनने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से आपको सुमित को सुनने में मजा आएगा। और आप सब यहाँ पे आए, मैं एक बार पुनः चॉइस परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के जो चीफ गेस्ट है मिस्टर समीर पाटिल जी को, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। Sri Samir has been more than 25 years of experience with a deep understanding of traded equity and debt asset classes, underlying physical commodity markets and global index, interest rates, commodity derivatives in both exchanges and OTC market. In his current role as a Chief Business Officer at BSE, he spearheaded the entire BSE Group business development and marketing function, which includes trading and distribution functions, as well as the strategic venture of the exchanges. Under his leadership, BSE has seen a revival of market share in traditional business segments such as equity segments. He is also instrumental in BSE business expansion and leadership in newer areas such as interest rate options and commodity derivative markets. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ समीर जी को, प्लीज आप स्टेज पर और हम सभी को मार्गदर्शन कीजिए। Good evening. Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. First of all, my CEO, Mr. Sundaraman Ramamurthy, was supposed to be here as a chief guest, and unfortunately there was an unscheduled work which came and he got busy over there, and I got this opportunity to come here and present his words in front of you. So it's my great pleasure and honor to be invited as the chief guest for this inauguration ceremony. I would like to express my heartfelt gratitude to the management of Choice Broking and his team for giving me the opportunity to be a part of this auspicious occasion. It is a great pleasure that I welcome you all to this momentous occasion. I would also like to extend my warmest congratulations to the team
on behalf of BSE, I assure you of our unwavering support. It is my firm belief that Choice Broking will continue to encourage innovation and work together to build a better tomorrow for all market participants. I believe you all will provide the best investment solutions to your clients, which will empower investors to achieve their financial goals. Empowering investors, as we all know, is the need of the hour as India is experiencing rapid economic growth. The markets have witnessed growth in terms of daily transactions, demat and trading accounts, increased inflows in products like mutual fund, etc. If we want to share this prosperity with a large cross-section of our society, we must ensure to look after the interest of the investors in our country. Those who part with their savings in search of relatively risk-free and reasonable returns seeks comfort in a regulatory regime that is responsive to their needs. This is where we all need to harness technology to its fullest extent, as in the case of trading. The use of technology in stockbroking has made the process of trading more efficient, convenient, and accessible for brokers and investors alike. The trading venue has moved from trading from the stock exchange to the broker office to the dealer terminal, and today at the hands of the investors through mobile. Gone are the days when the investors used to wait for days to get their hands on physical copies of their shares. Thanks to advancements in technology, the Indian capital market has emerged as one of the largest market ecosystems in the world. All brokers on the fateful day interoperability did not work in one form, with BSE trading allowing firms to transact using the last available info on collateral posted at the other clearing corporation before it shut down. Some members also use interoperability function to square off positions of clients using intraday products. But as front-end systems used by most brokers haven't yet adapted to the interoperability regime, clients couldn't place this square off trades on their own. BSE today provides one of the fastest trading systems, a robust clearing corporation, and highest standards of compliance, risk management and surveillance systems, and good corporate governance. But this is yet to dawn upon most members, and they continue to trade on only one venue. Many broker risk management systems still are out of date and need to be upgraded for the interoperability regime. In short, India's trading ecosystem isn't yet fully geared for interoperability, even though it was permitted by the regulator more than 3 years ago. BSE continues to look forward to getting support from all members and technology providers here, both front office and back office, for the enablement of BSE system, readiness and enablement, and availability of BSE related products on BSE terminals, screens and mobile devices. This will also help volumes growth, with clients able to square off positions across exchanges without using additional margins. Just to brief, I am also happy to inform that BSE has made several innovative differentiations to its product suite that are immensely beneficial to the investors. Most important, in the equity segment, BSE now offers reduced tick size of 1 paise for scrips below ₹100, which helps investors with a lower impact cost for the trades by offering tighter bid-ask spreads. In USD INR options, BSE offers strike price interval of 10 paise from 25 paise, which lowers cost and create more opportunities for traders, not only traders, but an effective hedge for the hedgers as well. Similarly, as Sabharwalji earlier said, that BSE is pleased to reintroduce derivatives contracts on BSE Sensex 30, the benchmark contract of India, and a unique and widely tracked index with differentiated expiry of Friday and reduced lot size of 10. Investors have been provided with simplified investment processes, transparency through disclosures in the market, and a robust investor grievance redressal mechanism. Therefore, I hope protecting investors' interests by offering all products of all exchanges with a prime mandate of all members present here, not only of their own sake, but also sake for the nation building. Before concluding, I once again congratulate Choice Broking and hope that it remains steadfast in its dedication to provide the best investment solutions. Thank you once again for inviting me, and BSE looks forward to strengthening our relationships and achieving greater success together. Thank you.
नेक्स्ट पर्सन है जो हमारे आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्टनर है NSDL से, मिस्टर प्रशांत वागल। उनके बारे में बताना चाहूँगा। ही इज़ अ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NSDL। उनके बारे में बताना चाहूँगा। प्रशांत वागल इज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड्स द बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन NSDL. He has completed Bachelor of Engineering and MBA in Finance and over 26 years of experience in capital market. Mr. Wagal has been associated with NSDL for 26 years now and handle various activities like business development, participants and CC interface, new product development, settlements, training, investor education, marketing, etc. Mr. Wagal has been a speaker at various forums, seminars held internationally. He has been a member of the committees and as SEBI and RBI. तो प्रशांत सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज़ डेस्क पे आ जाइए और हमें सबको मार्गदर्शन कीजिए। आपका अमूल्य वेल देके आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका स्वागत है सर। Good evening everyone and thanks for the opportunity given to us to be the part of this function. Choice Group को बधाई देना चाहूँगा आज के ओकेजन के लिए as well as for the launch of the new offices. बार बार ये चीज़ बताई गई कि आज का दिन सुमित बगेड़िया जी का है, तो प्लेट छोटी ही रखूँगा, ये इंश्योर करूँगा, ये वादा देता हूँ। बिफोर आई से समथिंग, NSDL ने अभी 26 साल पूरे किए हैं और लास्ट ईयर हमने 25 साल कंप्लीशन का इवेंट किया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वॉज देयर, SEBI चेयरपर्सन माधवीपुरी गुज वॉज देयर, and there were many senior dignities from the finance ministry, various organizations which graced the occasion. उस प्रोग्राम में हमने 2 इवेंट लॉन्च किए। पहला था मार्केट का एकलव्य। ये एक एजुकेशन सीरीज है जो हमने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है और मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस एजुकेशन से कवर किए। मुझे आशा है आप सबको एकलव्य मालूम होगा। उन्होंने जो आज हम वेबिनार देखते हैं वो एकलव्य जी ने महाभारत के ज़माने में चालू की थी और उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने खड़े लगे एजुकेशन लिया था। वही हम आज डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं। मार्केट का एकलव्य लॉन्च करने के लिए हमारे पीछे एक प्रेरणा थी, एक इवेंट था, तो मैं सोच रहा हूँ आज वो आपको बता दूँ। 5 साल पहले हम एक CBSE स्कूल में गए थे। 10th 11 स्टूडेंट्स के सामने मैं खड़ा था, मेरे साथ ICICI म्यूचुअल फंड के सीनियर ऑफिसर्स थे और हम दोनों को प्रिंसिपल ने इंट्रोड्यूस किया एंड म्यूचुअल फंड के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको बोला अभी आप म्यूचुअल फंड के बारे में बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए। वो स्टेज पे आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा, बच्चों आपको म्यूचुअल फंड मालूम है क्या? उनको लगा, बहुत से लोगों को लगेगा क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स है, जूनियर कॉलेज है और SSC पास किए हैं और नॉर्मली करिकुलर में म्यूचुअल फंड शेयर्स के बारे में बताते नहीं है। सेविंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इतना ही अभी तक का एजुकेशन सिस्टम है। पर जब भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा तभी 10 से 12 स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर किया, तो वो बहुत खुश हो गए, चलो मेरा काम तो आधा हो गया। तो उन्होंने एक लड़की को पूछा, बेटी जरा बताओ ये म्यूचुअल फंड क्या है? तो वो लड़की खड़ी हुई, उन्होंने बोला, अंकल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। 10 के 10 लोगों ने यही आंसर दिया। तो देन वी रियलाइज कि देयर इज अ नीड फॉर अस टू एजुकेट दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि जिंदगी भर वो वही सीख के जाएंगे कि ये म्यूचुअल फंड सबसे रिस्की है और उसमें इन्वेस्ट करना मीन्स इज नॉट अ वर्क फॉर आवर लाइफ। एंड दैट्स द रीजन आवर मार्केट का एकलव्य हमने लॉन्च किया। जो ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में आ चुके हैं वो तो अभी एकलव्य से थोड़े आगे गए, तो उसके लिए हमारा कैश है, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। मुझे आशा है आप सबको वो मिलता रहेगा। उसमें हम रेगुलरली आपको आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, नई चीज़ क्या आ रही है, जैसा नॉमिनेशन मैंडेटरी है, 6 KYC एट्रीब्यूट मैंडेटरी है, पैन आधार लिंकिंग मैंडेटरी है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, और ये करने के लिए डिजिटल वे कैसे है। आज जो हमारा कैश आता है वो कैश खोल के आप नॉमिनेशन कर सकते हो, आप ईमेल आईडी मोबाइल अपडेट कर सकते हो। अभी हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं और कैश को हम आगे इन्हांस करके आपको उसमें नेशनल सेविंग स्कीम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड, LIC का एक स्लोगन रहता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हमारा कैश यही करता है, जिंदगी जब भी रहती है तभी वो इन्वेस्टर को ये बताता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, और जिंदगी खत्म होने के बाद वो उनके सर्वाइवल को बताता है
कि जो हमारे लिए कुछ मेहनत करते थे वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए। आज भी हमारे पास कितने ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं और वो बोलते हैं आपका कैश था, उसके लिए पता चला हमारे लिए क्या इन्वेस्टमेंट हमारे पिताजी या हस्बैंड करके गए थे। एंड सो दिस इज आवर एंडेवर टू इंश्योर कि वी ऑलवेज कीप आवर इन्वेस्टर इन्फॉर्म about the future, inform about his investment and what is good and bad for the market and for his investment। मैंने कहा था प्लेट छोटा रखूंगा। So thank you once again, thanks for the choice group for inviting। तो अभी प्लेट तो फुल हो गई है, अभी आइसक्रीम की बारी है, तो खाना चाहोगे आइसक्रीम सब लोग? अरे हाँ या ना, या भूख लगी है? और भूख लगी है तो और सेशन रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइसक्रीम एंड में करेंगे। चलो, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिनके लिए आप आए हो, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बाकी तो उनको आप सुन लेंगे। सुमित बगड़िया जी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च। मिस्टर सुमित बगड़िया इज अ फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट विद ओवर 15 years of experience and an MBA in finance. He has a deep understanding of equity, commodity and currency and is frequently sought out by media and wire services for his insights and analysis. Mr. Bagadia's exceptional ability to identify market opportunities and his hardworking nature has made the Choice Technical Research Days a coveted destination for financial market professionals. At the desk, Mr. Bagadia focus on identifying support and resistance level. आप सभी लोग support और resistance को follow करते हो? हाँ या ना? भूख लगी है? Okay, थोड़ी देर में होगा। Sector specified strategies and short-term positional calls. He has extensive knowledge of various technical analysis technique, relative strength index, and option strategies among others. Mr. Bagadia's strategies are designed to help both investors and traders achieve their short-term and long-term goals. तो सुनना चाहेंगे सर को? हाँ या ना गाइस? तो मेन पर्सन के स्वागत में हो दिल से भरपूर, मेन पर्सन के स्वागत में हो दिल से भरपूर, खूब बजाओ तालियां क्योंकि अभी आ रहे हैं सुमित द स्टॉपर शो। सुमित सर, वेलकम टू द स्टेज सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को कुर्सियां बांध लेंगे, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 45 मिनट से 1 घंटे के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज सेशंस होने वाला है। सुन लीजिए सुनील जी को, और रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि प्लीज अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी यंगस्टर्स को मेरा प्यार और हाय। आज आप सब वर्किंग डे के दिन टाइम पे आए और इतनी तादाद में आए, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है कुछ लोग नए होंगे, हो सकता है कुछ लोग सालों से काम कर रहे होंगे। आज टुडे वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मार्केट्स। जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो लोग मार्केट्स के अंदर फ्रेश आना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट में डिटेल्स बताना चाहूंगा कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं और हमारा विजन क्या है। एज ए चॉइस ग्रुप हम एक टैगलाइन लेके चल रहे हैं। हमारा ग्रुप एक टैगलाइन लेके चल रहा है, सर्वश्रेष्ठ का। कोई भी ग्रुप सर्वश्रेष्ठ तब बन सकता है जब उसके साथ जुड़ने वाले लोग आगे बढ़े। आज हम दिल्ली यानी कि कैपिटल में कैपिटल मार्केट के ऊपर एक सेशन करने आए हैं और हम चाहते हैं कि इस 1 घंटे के अंदर जो कि मैं अभी लेने वाला हूं सेशन, उस 1 घंटे के अंदर आप लोग मेरे साथ एकदम कनेक्टेड रहे। इस सेशन के बाद जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो और कमाएं। जो लोग करना चाहते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से शुरुआत करें, मार्केट को समझ के शुरुआत करें, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म का निवेशक बने, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए आए। और आप पैसा कमाएं, आपके थ्रू और लोग पैसा कमाएं, आपके थ्रू और रेफरेंसेस आए, वो हमारे साथ आगे बढ़े। एट प्रेजेंट वी आर अमंग टॉप 15। हम दिल्ली में हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए दिल्ली अभी दूर है, बिकॉज हम विजन बड़ा लेके चल रहे हैं। इसी के लिए आज ना कि हम दिल्ली
पूरे नॉर्थ के अंदर 10 ब्रांचेस के साथ हम ओपनिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिएगा, आप लोगों का साथ चाहिएगा। और आज का सेशन जब मैं स्टार्ट करूं उसके बाद जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास पेन या पेपर होंगे, पैड होगा, उसमें आप नोट करते जाइएगा जो जो चीजें मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप सुन रहे होंगे, बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो मैं हर 5 मिनट 10 मिनट में एक ऐसे टैगलाइंस, ऐसे मैसेजेस दूंगा जो आप लोगों को काम आएंगे। ये सेशन तक ही सीमित मत रखिएगा, ये चीजें आप अपने साथ लिख के लेके जाइए और जब तक आप शेयर मार्केट में हो तब तक इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करना, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। 45 मिनट से 1 घंटा पूरा चाहिए। प्लीज बी विथ मी सो दैट जो जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एकदम आपके ब्रेन में जाए। जब तक आप दिल और दिमाग से वो चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो चीजें फ्रूटफुल नहीं होगी। शैल वी स्टार्ट द टुडे सेशन? सबकी आवाज नहीं आई? ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत गीता से होनी चाहिए, शंख बजा के होनी चाहिए। एक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब सबने रामायण और महाभारत देखा था, एम आई राइट? एक बार आज भी हम महाभारत देखने वाले हैं। आप लोग सोचोगे कि ये शेयर मार्केट का सेशन है कि कोई रिलीजियस कथा का सेशन है। हमने एक यूनिक स्टाइल में स्टॉक मार्केट को महाभारत के साथ लिंक किया है। तो एक एक स्लाइड बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। महाभारत के कैसे पॉइंट्स को हमने शेयर मार्केट के साथ लिंक किया है ये हम अभी देखने वाले हैं। सो अभी फर्स्ट पॉइंट जो मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये जो दिख रहा है ये क्या है? यहाँ पे लिखा है, आप सब जोर से बोल सकते हैं, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के अंदर घुसना आसान नहीं था लेकिन आप घुस सकते थे। महाभारत में कुछ ही लोगों को चक्रव्यूह में घुसना आता था, उसमें से एक था अभिमन्यु जिसको घुसना आता था लेकिन एग्जिट नहीं आता था। एग्जिट नहीं आने के कारण क्या हुआ? जान गंवानी पड़ी। ये तो थी महाभारत की कहानी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है? चक्रव्यूह। घुसना आसान है, नहीं कभी भी घुसो, लॉकडाउन का जरूरत नहीं है। यू कैन एंटर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। आप 9:15 बजे घुस सकते हो मार्केट के अंदर, बीच में घुस सकते हो, 3:30 बजे घुस सकते हो मार्केट बंद होने के पहले। आप स्टॉक को किसी भी प्राइस में एंट्री कर सकते हो, सिर्फ आपके पास एक चीज होनी चाहिए, क्या? पैसा। इफ यू हैव मनी यू कैन एंटर द स्टॉक मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। एम आई राइट? राइट।
नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इज एग्जिट कहां कर। बहुत से लोग प्रॉफिट में होते हैं बट एग्जिट नहीं कर पाते। बहुत से लोग लॉस में होते हैं पर एग्जिट नहीं कर पाते। बहुत से लोग कॉस्ट पे भी होते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते। जब तक आप मार्केट के अंदर एग्जिट करना नहीं सीखेंगे कोई भी, तो आप मार्केट से अच्छा पैसा नहीं बना सकते। कोई ऐसा यहां पे जिसने 100 पे स्टॉक लिया हो, 200 तक चला गया और एग्जिट नहीं कर पाया और वापस 100 या 100 के नीचे आ गया हो, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने दिया। ऐसे कोई जो एग्जिट नहीं कर पाए और लॉस फेस करना पड़ा, वेरी गुड। एक तो हिचक हिचक करके हाथ खड़े हुए, फिर धीरे धीरे करके बहुत खड़े हो गए। सी in share market, first point that is very important, that is entry and exit. Entry can be taken at any given point in time, but the most important part is exit. You should know when, where, how to exit. You can exit in profit, you can exit in loss, you can exit at cost. Exit के लिए profit में आपको trailing stop loss लगाना आना चाहिए। Trailing stop loss सबको पता है? सिर्फ 4-5 लोग की आवाज आई। सबको पता है? Trailing stop loss सबको पता होना जरूरी है। 100 की चीज अगर 150 जाती है, 180 जाती है, 200 जाती है, you should know where to keep your trailing stop losses. Till the time you are not able to keep the trailing stop losses, आपके प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में दिखेंगे और वाइप आउट होते जाएंगे। So you need to exit at any given point in time. अगर आपने एग्जिट करना सीख लिया तो शेयर मार्केट से पैसा बनाना सीख लिया। बहुत से लोग ये डर से नहीं एग्जिट होते कि अगर बेचूंगा और बेचते ही और ऊपर चला गया तो मैं कभी शेयर को पकड़ नहीं पाऊंगा। शेयर को हमेशा ये जरूरी नहीं है कि गिरते हुए भाव में ही लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे स्टॉक, ऐसी कंपनीज होती है जो कंटिन्यूस परफॉर्म करती है। सो यू नीड टू नो, यू नीड टू एवरेज व्हेन द स्टॉक्स मूव्स अप, दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। यानी लोग एक बार क्या करते हैं, लोग जनरल पब्लिक 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी तो 80 में खरीद लेंगे, 70 पे खरीद लेंगे, 50 में खरीद लेंगे, लेकिन 120 में नहीं खरीदेंगे, 140 में नहीं खरीदेंगे। सो दिस इज कॉल्ड री एंट्री। क्योंकि अगर कोई चीज का बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यू नीड टू एंटर दैट स्टॉक एट हायर लेवल्स आल्सो। टिल दैट टाइम यू डोंट इंक्रीज योर पोजीशंस, यू वोंट बी एबल टू टेक द एक्चुअल प्रॉफिट जो मार्केट आपको दे सकता है। और फिर स्टॉक बढ़ते जाता है और फिर हम खरीदते नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि यार मैंने तो 120 पे बेचा और वहीं से वो 200 हो गया। ऐसा होता है किसी के साथ? बहुत से लोगों के साथ होता है, अभी बोल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए पोजीशन साइजिंग इज इंपॉर्टेंट, एंट्री इज इंपॉर्टेंट, एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर लेवल्स पे अगर आपने एंट्री और एग्जिट कर ली तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? सबको क्लियर? कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? डिसिप्लिन। ये महाभारत का एक सीन है जहां पे सब बच्चे खड़े हैं और गुरु खड़े हैं। यहां पे क्या सिखाया जा रहा है? तीर चलाना। 3 से 4 पॉइंट में भी एक साथ आपको बताने वाला हूं, जो सब सुनते हैं, सब फॉलो करते हैं। ये मार्केट में कैसे लिंक होते हैं ये अब हमको देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। सेकेंड पॉइंट फोकस। आप नोट कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट इज फोकस। वो बच्चे लोग जो शिष्य थे वो सब क्या चीज को निशाना लगाने के लिए देख रहे थे? हाँ, राक्षस, चिड़िया। तो जब गुरु ने पूछा कि आपको क्या चीज को निशाना लगाना है, आपको क्या दिख रहा है पेड़ पे, तो कुछ ने बोला नहीं, सबने चिड़िया नहीं बोला सर। कुछ ने बोला आसमान, कुछ ने बोला पत्ते, कुछ ने बोला पेड़, और एक ने बोला चिड़िया। चिड़िया और चिड़िया किया। डिसिप्लिन, फोकस, गोल, और अब चौथा पॉइंट
अब ये चारों पॉइंट का मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा शेयर मार्केट के साथ। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, जो फर्स्ट पॉइंट डिसिप्लिन था, तो क्या फर्स्ट डे पे सबको गोल दिखता था, सबका रिजल्ट आता था? यस और नो? नो। सबको पता था कि हमको एम क्या है, हमारा गोल क्या है और हमारा रिजल्ट क्या आना है, क्या लाना है हमको। बट कुछ लोग एक दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देते थे, कुछ शिष्य, कुछ बच्चे। एक बच्चा ऐसा था जो डिसिप्लिन रख के रेगुलर प्रैक्टिस करता था। कौन था वो? अर्जुन। He used to practice, he used to focus on his goal, और उस फोकस पे रख के जब गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट आता है। तो क्या अर्जुन ने सिर्फ एक ही बार में रिजल्ट पा लिया होगा? नो। उसने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी होगी, डिसिप्लिन के साथ फोकस रखा होगा, गोल को सेट रखा होगा, तब जाके रिजल्ट आया होगा। ये थी महाभारत की कहानी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, आप लोगों का फोकस और गोल क्या होना चाहिए? शेयर मार्केट में आके पैसा तोड़ना। कोई यहां पे ऐसा जो पैसा तोड़ना चाहता है शेयर मार्केट में आके? एक दो लोग? कोई भी नहीं है। तो सबका गोल क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। नाउ टू मेक दैट प्रॉफिट, टू अचीव दैट रिजल्ट, क्या हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? क्या हमारा फोकस परफेक्ट है कि हमको एक ही स्टॉक में, एक ही स्टाइल में, एक ही स्ट्रेटेजी में मार्केट में काम करना है? नो। दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई मेनी ऑफ अस आर नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। अभी रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ था, आउट ऑफ 100% ओनली कितना? ओनली 9% पीपल, अप्रोक्स 10% पीपल मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। सो 10% कौन है? अर्जुन है। अर्जुन। और बाकी 90% कौन है? नहीं सर, इसी चीज को चेंज करना है। इसी चीज के लिए हम आज यहां पर है कि हम भी उस 10% में आए, या वो रेशियो हम इंक्रीज करें। उसके लिए ये जो चीजें हैं ये सीखनी होगी, समझनी होगी, उसके अंदर घुसना होगा, तब जाके पैसा बनेगा। नाउ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हर कोई मार्केट में आओ, पैसा डालो, पैसा तोड़ो, घर जाओ। ये डिसिप्लिन? नो। डिसिप्लिन का मतलब ये है, इफ यू आर स्टिकिंग टू वन स्टॉक, आपको अपना पैसा जो इन्वेस्ट करना है मार्केट्स के अंदर, उसको आपको या तो डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए, दैट इज ए टाइप ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप एक स्टॉक को एक ही टाइम पे पूरा खरीद लोगे, दैट इज रॉन्ग। डिसिप्लिन सेज यू शुड इन्वेस्ट इन बिट्स एंड पीसेस, यू शुड इन्वेस्ट इन पार्ट्स। आप एक साथ एक पैसा मार्केट में डाल दोगे, लमसम 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, और फिर 1 साल 2 साल तक पैसा नहीं डालोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यू शुड मेक अ डिसिप्लिन टू इन्वेस्ट रेगुलरली। 1 महीने में इन्वेस्ट कीजिए, 2 महीने में इन्वेस्ट कीजिए, 3 महीने में इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्वेस्ट रेगुलरली over a period of time. When you come in the stock market, come with a horizon of intraday. When you come in a stock market, you should come with a horizon of intraday nahi. You should come with a horizon of long term. Long term का मतलब सुबह 9:15 बजे खरीदने का, शाम को 3:30 बजे बेच देने का। नो सर, लॉन्ग टर्म मीन्स 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, 15 year. आर यू गेटिंग मी? क्या आप मेरे साथ हैं? प्लीज बी विथ मी। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये होराइजन के साथ मार्केट में आइए। स्टॉक इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, इन्वेस्ट रेगुलरली। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जिस भाव पे आपने शेयर खरीदा उसके बाद कभी नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा? हाथ खड़ा कीजिए। आप
सब लोग मानते हैं कि स्टॉक नीचे आएगा। कितने लोग एवरेज करते हैं जब नीचे आता है तभी? हाथ खड़ा कीजिए। सब मानते हो नीचे आएगा, लेकिन एवरेज करने के लिए सिर्फ 10 हाथ खड़े हो। आपको समझा मिस्टेक कहां है? If a good quality stocks gives a correction, you should invest at lower levels. Now, what is good quality stock? What is the lower level? Sorry? नहीं, good quality stock क्या है? You can give your return every year. Yes. 5 रुपए, 10 रुपए, 25, 50 रुपए वाले स्टॉक गुड क्वालिटी स्टॉक नहीं है। कल कोई 50 रुपए का स्टॉक बाय करेगा, फिर वो 1 साल के अंदर 25 आएगा, 1.5 साल के अंदर 15 आएगा, तो अब आज का बात सुन के एवरेज करते करते फॉलो नहीं करना। यू नीड टू फॉलो अ गुड क्वालिटी स्टॉक। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अ गुड क्वालिटी स्टॉक इज L&T। जस्ट एन एग्जांपल। कल ट्यूसडे को खरीदना नहीं है वो स्टॉक। यस, कोई भी क्वालिटी स्टॉक अगर टूटता है, इफ द मैनेजमेंट इज गुड, इफ द विजन इज गुड, बैलेंस शीट इज गुड, कंटिन्यूअस परफॉर्मर है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक्स, बीच में किसी ने कहा, ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, डिप्स में एवरेज करना चाहिए। डिप क्या है? किसी ने पूछा कितना नीचे, तो वो तो मुझे भी नहीं मालूम। कितना एवरेज करें? नहीं, suppose a good quality stocks falls by 20%, 30%, 40%, you should average at those levels. हर अच्छा स्टॉक गिरता है। आप में से इतने लोग यहाँ बैठे हो 400 प्लस, कोई बिजनेस में होंगे, कोई प्रोफेशन में होंगे। डू यू मेक मनी एवरी डे? डू यू मेक मनी एवरी ईयर? डू यू फेस लॉसेस? यस और नो? तो शेयर मार्केट में लॉस फेस करने में क्या प्रॉब्लम है? You should take this as a profession. If you take this as a profession, you will make money. If you take this as a gambling, short-term investment, और 10%, 5%, 15% नीचे आने से अगर घबराते हैं, तो फिर this is not the right place. अडानी के शेयर खरीदने चाहिए आप? सर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। अभी मेरा प्रेजेंटेशन पूरा खत्म होगा, तब तक आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। Talking about stop losses. And एक तरफ आप stop loss की बात कर रहे हैं, दूसरी जैसे कि don't be afraid of that. अभी तक मैं स्टॉप लॉस पे आया नहीं, हम स्टॉप लॉस के पॉइंट पे आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। आप मेरा पूरा प्रेजेंटेशन सुनिएगा सब लोग। एंड में आपके क्वेरीज जो आएंगे वी विल सॉल्व। उसके पहले 45 मिनट्स बी विथ मी। आई अश्योर यू, अगले 45 मिनट के अंदर आप लोग के दिमाग में जितने सवाल आ रहे हैं ना, उन सब का सोल्यूशन मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आपको जवाब मिलेगा। So now at present we are in discipline, focus, goal, result. So if you want to get result from the markets, you should follow discipline. Discipline is what? Invest regularly. आप हर मंथ इन्वेस्ट कीजिए। किसी का कैपेसिटी 5000 का है, इन्वेस्ट 5000। किसी का कैपेसिटी 50000 का है, इन्वेस्ट 50000। इफ यू कैन नॉट इन्वेस्ट एवरी मंथ, इन्वेस्ट पार्टली। कुछ तो एक डिसिप्लिन बनाइए, कुछ तो एक सिस्टम बनाइए जिसके अंदर यू कैन बी इन मार्केट। डोंट थिंक लाइक दैट कि आपने 5 लाख रुपए एक साथ डाला, उसके बाद आप मार्केट में पैसा ही नहीं डालोगे। दिस इज नॉट एफडी। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपने एक बार डाल दिया उसके बाद आप 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल देखोगे नहीं। दिस इज स्टॉक मार्केट। फ्लक्चुएशंस होंगे, वॉलेटिलिटी होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, देन ओनली यू शुड कम इन दिस मार्केट। अगर आप प्रिपरेशन के साथ आओगे, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आओगे, तो आप लोग घबराओगे नहीं। कम विथ होमवर्क, कम विथ डिसिप्लिन, फोकस रखो, विजन रखो, उसके बाद देखिए कैसे आपको टारगेट अचीव होता है या रिजल्ट मिलता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि लेने के बाद स्टॉक ऊपर जाता ही नहीं है? स्टॉक का नाम जोमैटो। ऐसा नहीं है। लास्ट 6 मंथ से या 8 मंथ से मार्केट के अंदर साइडवेज मूव है या करेक्टिव मूव है। इसके अंदर भी मैं कितने स्टॉक ऐसे गिना सकता हूं जो ऊपर जा रहे हैं। नीचे भी तो आ रहे हैं।
नीचे भी आ रहे हैं सर, आएंगे, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। बट जो नीचे आ रहा है अगर क्वालिटी स्टॉक है तो वापस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो ऊपर ही नहीं जाने वाला है और फिर आप बोलोगे कि मार्केट खराब है, तो नहीं चलेगा सर। Our homework should be there, our study should be there, our selection should be there, our conviction should be there, and if everything is there, you will make money. अब conviction 5 रुपए 10 रुपए वाले शेयर पे मत रखना। Conviction should be in good companies. Where you come in, like just Yes, yes. So, for example, IT sector is in downtrend. तो क्या ये हमेशा downtrend में रहेगा? ये 4 पॉइंट्स अभी जो बताए वो आप नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें मार्केट के अंदर जरूरी है। यू नीड टू हैव डिसिप्लिन, यू नीड टू हैव फोकस, यू नीड टू नो व्हाट इज योर गोल, तभी आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। सपोज योर गोल इज यू शुड गेट 25% रिटर्न, यू शुड गेट 30% रिटर्न, यू शुड गेट 100% रिटर्न। कितने लोग ऐसे जो 100% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, एनुअली। सर एक्सपेक्टेशन ऐसी रखनी चाहिए मार्केट से जो अचीव हो। अचीवेबल है बट नॉट ऑल द टाइम, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी ईयर। कौन से स्टॉक्स पे सर? सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे, रियलिस्टिक रिटर्न्स अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, जो भी एसेट क्लास अवेलेबल है, देयर आर 4 asset classes available. One is fixed deposit, second is real estate market, third is commodity market, fourth is अभी म्यूचुअल फंड बोलिए, fourth is stock market. किसी भी एसेट क्लास से एक एवरेज रिटर्न आप देखिए क्या मिलता है, उससे ऊपर का एक्सपेक्टेशन रख के चलिए। अगर आपका एक्सपेक्टेशन स्टार्ट से ही 50%, 100%, 150% होगा और फिर आपको कम मिलेगा तो आपका एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट इज नॉट गिविंग रिटर्न। यू एक्सपेक्ट अ डिसेंट रिटर्न एंड देन यू गेट 50%, 100% रिटर्न, दैट विल मेक यू फील हैप्पी। सो रियलिस्टिक रिटर्न रख के अगर आप मार्केट में आने की सोचेंगे और रियलिस्टिक रिटर्न के साथ अगर आप मार्केट में कमाने की सोचेंगे, दिस इज द बेस्ट बिजनेस, best asset class in a longer period of time where you can make good money. Right? Next slide पे चले? Yes or no? Yes. Can you see this slide? Yes? Yes. कौन है ये? आप सबको ऊपर लिखा है, बोल सकते हैं। जो भी चीज पूछ रहा हूं ना, उसमें कहीं पर कोई लोड नहीं आने वाला है। एवरीथिंग इज रिटन, यू जस्ट नीड टू सी एंड यू नीड टू स्पीक विथ मी। भागीरथ कौन थे? गंगा को धरती पे लाए थे। गंगा को धरती पे लाए थे। उन्होंने 1 साल तपस्या करी और दूसरे साल गंगा धरती पे आ गई। यस और नो? नो। कौन यस बोला? उन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल तपस्या करी और धरती पे गंगा आ गई। यस और नो? नो। वन मोर प्लीज। सो मेरे कहने का मतलब ये है, ये महाभारत का सीन है जहां पे भागीरथ जी ने तपस्या करी, सालों तपस्या करी, शायद 100 साल तक तपस्या करी, तब जाके धरती पर तो क्या किया इन्होंने? ये था महाभारत। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, यू नीड टू कीप डिसिप्लिन। सी आई विल रिपीट अगेन, मैं जितनी चीजें बोलने वाला हूं वो सब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगी और आपको समझ में आएगा, बिकॉज आई एम गिविंग यू द एक्चुअल एग्जांपल्स जो हुए हैं, जो हमने गीता में पढ़े हैं या जो हमने महाभारत में देखे हैं। तो अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? गंगा नहीं मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं गंगा मिलेगी, तो आपको सोचना है कि महाभारत में जिस तरह से रेगुलर इन्वेस्टमेंट हुआ, तपस्या हुई, पेशेंस रखा, टाइम
टाइम दिया, उसी तरीके से इफ यू वांट टू बी इन मार्केट्स यू नीड टू इन्वेस्ट रेगुलरली, यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू बी फोकस, तब जाके आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर? कौन ऐसा है जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आना चाहता है? अपनी दिल्ली टीम जितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं उनका अकाउंट पहले ही खुलाना। सर आई विल रिपीट अगेन, कम विद अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, यू विल मेक मनी। मुझे ऑलमोस्ट 20 साल मार्केट में हो चुके हैं, 2-3 मंदी भी देख चुका हूं, इतने सेमिनार किए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सेमिनार खत्म होते ही लोगों को एक स्टॉक चाहिए जो कल रिटर्न दे। आई एम टेलिंग यू, डोंट गो बिहाइंड वन स्टॉक, डोंट गो बिहाइंड 1 day 2 day, बी इन मार्केट फॉर इयर्स। आपको भी मार्केट के अंदर इनकी तरह 100 साल रहना है, एटलीस्ट बी इन द मार्केट फॉर 5, 10, 15, 20, 25 years। जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए, मार्केट्स के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, यू विल मेक मनी इन दी मार्केट। कोई यहाँ पे ऐसा जो मार्केट के अंदर रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा है और पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में अच्छा रिटर्न कमा रहा है? वेरी गुड। सी, जो कि एग्जाम्पल है, 100% में से 5-10% क्यों कमाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इतनी ऑडियंस में भी सिर्फ 4 लोगों ने हाथ खड़े किए। सर अभी आगे एक पॉइंट आएगा, वो बताएगा कि बॉम्बे से खबर आती है उसमें पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। भी जैसे ये 4 लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर कोई अपना एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करना चाहे, जो बताना चाहे कि ऐसा एक स्टॉक वो कंटिन्यूसली होल्ड करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, सो दैट अदर्स फील मोटिवेटेड, अदर्स फील इंस्पायर्ड एट द सेम टाइम। एक माइक देना ना, others feel inspired and they realize कि why the person is making money and how people can make money। उनको देना ना विश्वास। मैं काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। मैंने ये देखा है कि नॉर्मल इन्वेस्टर जैसे मैं हूँ, हमारे को एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पकड़ने में हमें हो सकता है दिक्कत हो। ओके। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का मंत्र है, मैं अपने आप को जो बताता हूँ और अपने आप लोगों को भी जो मेरे से मिलते हैं उनको सबको बताता हूँ कि मैं ETF के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, और उसमें मैं जैसे ही मार्केट 10%, मैंने अपना एक लेवल बना रखा है कि मार्केट 5% गिरेगी, 10% गिरेगी, तो मैं हमेशा उसमें बाय करता हूँ, और एक रिटर्न का टारगेट है कि मैं जैसे ही उसमें रिटर्न आती है ना, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। क्योंकि स्टॉक को हो सकता है कि आप पर्टिकुलर एक स्टॉक को ना पकड़ सकें, तो उसमें क्या है, बैंक निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी के ETFs आते हैं, इंडेक्स के ETF हैं, तो ETF में हम बाय करते हैं। जैसे जैसे ETF गिरते हैं, कोई स्टॉक मार्केट बीच में आपने कोरोना में देखा मार्केट डाउन हुई, अभी जैसे मार्केट अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अभी गिरी है मार्केट, तो मार्केट में ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट मेरे को सेफ लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसे इनको ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट सेफ लगता है, इन ETF के थ्रू करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया, क्वालिटी स्टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ इट फॉल्स, इफ यू इन्वेस्ट रेगुलरली, मार्केट के अंदर कोविड का फॉल किसने देखा? सबने देखा। इंडेक्स कहां तक गया था? नहीं सर, 6000 कहां गया? 7,500। तो 7,500 के बाद बढ़ा ही नहीं, कितना तक गया हाई में? आपका स्क्रीन कहां 21 दिखाता है सर? कितना गया? 18,500, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो 7,500 वाला इंडेक्स कितने साल के अंदर 18,500 हुआ? 2 साल में। तो ये 2 साल में कोई भी स्टॉक नहीं बढ़े, ये 2 साल में किसी भी स्टॉक में रिटर्न नहीं आया। लेकिन कितने लोगों ने 7,500, 8,000, 8,500 में इन्वेस्ट किया, और बाकी लोगों ने क्या सोचा? वो 6,000 वाले कौन थे? 6,000, 5,000 ये सोचा। चलो 8,500 में नहीं किया, 9,000, 10,000, 11,000, किधर तो हमको इन्वेस्ट करना होगा ना। एंड इफ यू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, सपोज आपने 14-15,000 पे इन्वेस्ट किया होगा, मार्केट केम डाउन टू 12,000, 11,000, 10,000, 9,000। अगर आप सिर्फ मार्केट को देख रहे हैं, हाउ विल यू मेक मनी? You need to average at lower levels। अब यहाँ से कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया और उन लोगों ने देखा, उन्होंने 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 के आसपास इन्वेस्ट किया। क्या 2 साल में आप लोगों को रिटर्न नहीं मिला? ऐसा फॉल क्या पहली बार आया? ऐसा फॉल क्या आगे नहीं आएगा?
आएगा। तो जब जब ऐसा फॉल आए तो आपको क्या करना है? नहीं, ऐसा फॉल नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा फॉल आता है 10%, 20%, 30%, 40%, यू शुड बी रेडी फॉर द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। डू यू मेक मनी एवरी मंथ और नो? डू यू मेक मनी एवरी मंथ और नो? नहीं, मार्केट से नहीं, अपने खुद के प्रोफेशन से। इन योर बिजनेस यू मेक मनी रेगुलरली और नो? आप हर महीने पैसा कमा के क्या पूरा खर्च कर देते हो? नो। जो सेविंग होता है उसका आप क्या करते हो? इन्वेस्ट। वेयर डू यू इन्वेस्ट? सब लोग शेयर मार्केट में डालते हैं। See, when we generate income every month from our actual source, वो पैसा हम कमाते हैं, कुछ हम खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट में जाता है। Try to invest that amount regularly in stock market and then see how you get the effect of compounding regular return from the markets. यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? Can I move to next slide? Now this slide is also a good slide, जो आप लोगों को बताएगी कि मार्केट्स के अंदर मूवमेंट का फायदा कैसे होता है। ये क्या है? महाभारत के अंदर सबसे पहले सब राजा थे, am I right? उसके बाद क्या हुआ? वनवास। वनवास खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसके बाद वापस क्या हुआ? राजा। वापस से राजा। सो इस चीज को, इस फेज को क्या बोलते हैं? सर यहाँ पे लिखा है वॉलेटिलिटी। महाभारत के अंदर ये जो दिखाया गया, दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड इन मार्केट टर्म्स वॉलेटिलिटी। जो जो इनका फेस आया, इन्होंने फेस किया और अच्छा टाइम भी वापस आया, राइट? यस। महाभारत के बाद अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। बहुत से लोगों ने यहां पे कहा था कि उनके लेने के बाद स्टॉक नीचे जाता है। सो दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। मार्केट्स के अंदर इट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट, स्टॉक्स विल मूव अप एंड डाउन। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके लेने के बाद हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप मार्केट के अंदर गलत सोचते हैं। You should always be ready for the fall in the market. You should always be ready कि आपके लेने के बाद स्टॉक नीचे ही जाएगा। So when it goes down, you are prepared for it. If you are ready to accept the volatility, if you are ready to grab that volatility, you will make very good money. For example, किसी ने अगर 100 रुपए पे कोई चीज ली, hypothetical example, if the stocks in next 6 months or 1 year moves up by 50 rupees और 80 rupees, अगर 100 वाला 150 हुआ तो कितना पैसा बनेगा? 50%। अब कोई भी स्टॉक 100 से 150 क्या एक तरफा जाता है? नो। 100 से 110 जाएगा, 105 आएगा, 125 जाएगा, 115 आएगा, 140 जाएगा, 120 आएगा। कुछ कुछ स्टॉक हो सकता है वन वे जाए, बाकी स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। 99% स्टॉक्स विल फेस दिस वॉलेटिलिटी। एक इंसान ने 100 रुपए पे लेके 150 पे बेचा, ही मेड 50%। अदर पर्सन स्मार्टली उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहा फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड एट द सेम टाइम उस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी को प्ले करता रहा विद सम स्ट्रेटेजी। 100 रुपए की चीज 110 में बेची, वापस नीचे आया खरीदी, वापस ऊपर गया बेची। सो दैट पर्सन विल मेक मोर मनी कंपेयर टू द पर्सन जिसने सिर्फ 100 में लेके 150 में बेचा, 6 महीना वेट किया या 6 महीने के बाद वापस नीचे आया तो कुछ भी नहीं कर पाया। और दूसरा पर्सन जो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग कर रहा है उसके अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, जिसके अंदर आपको फ्लक्चुएशंस के अंदर आपको मूव पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। इफ यू आर एबल टू ग्रैब और कैप्चर सच मूवमेंट, you will make more money compared to the person who is making 50% in one shot. Are you getting me?
So this point is clear. Averaging should be done at proper levels. 100 रुपए पे अगर कोई चीज खरीदी है तो एवरेज कहाँ करना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप 50% आपकी अगर 25% बस दी हुई है तो आपको अगर एवरेज करना है तो उससे आपकी बेटर है। See, averaging should be done at proper levels. How will you get the levels? फंडामेंटल आपको क्या बताता है कि इस सेक्टर में तेजी है, इस स्टॉक में तेजी है, यू हैव एंटर्ड द मार्केट। आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी को प्ले करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकल्स। टेक्निकल से आपको यह पता चलता है कि रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है, एवरेज कहां करना है, प्रॉफिट बुकिंग कहां करना है, किन लेवल्स पे मार्केट घूम रहा है और कहां से आपको खरीदना है। मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कौन सी 3 चीजें? वन इज फंडामेंटल, जिससे आपको ये पता चले कि आपको तेजी करनी है, जिससे आपको ये समझ में आए कि यू हैव एंटर्ड द राइट स्टॉक, यू हैव एंटर्ड द राइट स्क्रिप्ट, एंड विद दिस द सेकंड थिंग दैट यू रिक्वायर इन द मार्केट, दैट इज टेक्निकल नॉलेज। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है विद फंडामेंटल, आपको एंट्री तो मिल गई, अब एंट्री के बाद बीच में स्पीड ब्रेकर कहां पर है, बीच में यू टर्न कहां पर है, वापस से कहां एवरेजिंग करना है, दैट यू कैन नो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स। और जो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तीसरी चीज पैसा। ओनली एंड ओनली दीज 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपके पास पैसा है आप कभी भी एंट्री कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर स्टॉक, इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको रिकॉल करते जाना, उन स्टॉक्स में निवेश करके आपको बीच में कहां एग्जिट मारना है, कहां एवरेज करना है, कहां पोजीशन साइजिंग करना है, कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए पोजीशन लिया है, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर 5, 10, 15, 20 इयर्स, देन यू नीड टू थिंक ऑफ एवरेजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी इफ यू हैव नॉलेज ऑफ टेक्निकल, एट द सेम टाइम यू शुड हैव मनी टू डू द एवरेज। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें? कैरेक्टर कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल को क्या वरदान था? 100 गलतियां, लेकिन फिर भी बंदे ने क्या किया? तो इनके साथ इनका क्या हुआ? सबको ये पॉइंट समझा? See, this is very interesting point, huh? And the perfect example when you are trading in options, when you are trading in futures, when you are trading or doing intraday or momentum play, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन मोमेंटम प्ले करने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ न्यूज बेस करना हो या कुछ ब्रेकआउट बेस करना हो, सो ऐसी चीजों को आप लोगों को स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। महाभारत के अंदर इनके पास वरदान था 100 गलतियां माफ होगी तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 गलतियां करी और एंड में क्या हुआ? गर्दन मुंडी कट गई। शेयर मार्केट के अंदर भी आप लोगों के पास ऐसा हथियार है, स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो क्या होगा? मुंडी कट जाएगी। You need to keep stop loss when you are trading in the markets. जब आप मोमेंटम प्ले करते हो, इंट्राडे प्ले करते हो, फ्यूचर्स के अंदर काम करते हो, ऑप्शंस के अंदर काम करते हो, you should have stop losses in place. विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम करेंगे, वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा, कहां जाएगा, मार्केट का फॉल क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, एंड यू विल लूज योर हार्ड एंड मनी। इफ यू वांट टू सेफगार्ड, इफ यू वांट टू प्ले इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, you should play with the calculated risk, you should play with the thorough knowledge, you should play with stop loss.
If you are a long-term investor, if the stock quality is good, and if you are investing for a longer-term time horizon, then you can invest in quality stocks. But at the same time, you need to understand the role of averaging. You need to understand that you need to keep patience. You need to understand that you need to average. You need to understand that you need to be long-term investor. Then only you can get good returns. This point is clear? स्टॉप लॉस पॉइंट इज क्लियर. मैं अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, वो एक और एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है. नेक्स्ट स्लाइड पे चले. Anyone knows the name of the game? चौसठ. ये गेम में 64 खेला जा रहा है. ये लोग खिला रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं. अगर ये लोग अपने आप को लिवरेज नहीं करते या एक लिमिट से ज्यादा नहीं खेलते तो क्या इनके हाथ से सब कुछ जाता? नहीं जाता. क्यों गया? क्योंकि ये लोग ओवर लिवरेज थे. Am I right? ओवर लिवरेज का मतलब इफ योर कैपेसिटी इज ऑफ 100 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, उसके हिसाब से आपको मार्केट में काम करना चाहिए. जनरली व्हाट पीपल डू, दे हैव देयर कैपेसिटी इज ऑफ 1 लाख और 5 लाख, और वो लोग काम कितना करते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख. दे ओवर लिवरेज देमसेल्व्स, जो उनकी कैपेसिटी नहीं है, और एंड में सब पैसा तोड़ के जाते हैं. So this is a perfect example to understand that आपका लिमिट, आपका लिवरेज आपके हाथ में है. You should not cross the limit. You should not over leverage yourself. If you over leverage yourself, you will lose everything. So play. एक कहावत है, जितनी चादर उतने पैर पसार. या चादर और बड़ी करूंगा. तो वो कैपेसिटी रखिए कि आप अपनी चद्दर बड़ी कर सको. जब जरूरत पड़े तो यू शुड हैव दैट मार्जिन जिससे आप अपना कैपेसिटी बढ़ा सको. इफ यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी, यू शुड नॉट लिवरेज योर सेल्फ. आर यू गेटिंग मी? दिस पॉइंट इज क्लियर? आई होप आप लोग पॉइंट्स नोट कर रहे हैं. ये सारे पॉइंट अभी एंड में काम आने वाले हैं, और ये सारे पॉइंट डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मार्केट्स में काम आते हैं. Shall I move on to next point? Who is he? पूरे महाभारत में सारी प्लानिंग किसकी थी? शकुनी मामा. ऑपरेटर. महाभारत में पूरी महाभारत की जो लड़ाई थी उसके अंदर मेन रोल प्ले किया शकुनी ने. दैट मीन्स ही वॉज हैविंग गुड ब्रेन्स. अगर यही चीज ये सही तरीके से यूज करते हैं तो जो इनके साथ हुआ वो होता. क्यों हुआ इनके साथ ऐसा? क्योंकि इस डायरेक्शन वॉज, गलत डायरेक्शन में गलत दिमाग यूज किया और गलत चीजें करी, तो एंड रिजल्ट वॉज ये था महाभारत. नाउ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट. डू यू थिंक दैट आप जो चीज लोगे वो हमेशा सही होगी? जब ऐसा फैक्ट है और ऐसा होना ही नहीं है, सो देन व्हाई डोंट वी स्टॉप व्हेन वी आर रॉन्ग? When you are wrong, that you have taken something wrong, you know that you will not get the returns or result as per your expectations. You should take U-turn. You should take U-turn. आपको उसमें से एग्जिट करना चाहिए. जो स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग, when you are wrong, you should take exit. You should take U-turn. When you know that the direction is wrong,
you should exit. If you take right direction, अभी एक एग्जांपल मैं सेक्टर के ऊपर देता हूँ. कोविड के पहले फार्मा सेक्टर में मोमेंट था, करीब 5 साल तक मेटल सेक्टर या 6 साल तक फार्मा सेक्टर में मूव नहीं आया था. Am I right? बट जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, फार्मा सेक्टर बूम. सो जिन लोगों ने 6 साल पहले लेके रखा होगा, उन्होंने सोचा होगा डायरेक्शन इज रॉन्ग, बिकॉज इट टुक 6 years 5 years to come at the cost price, to come at the profit. जिन लोगों ने लिया और लेते ही रिटर्न दे गया, उन लोगों ने सोचा होगा कि माय डायरेक्शन इज राइट. एंड द डायरेक्शन इज राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब कौन सी चीज चलने वाली है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और इफ यू आर विद पीपल, सच पीपल हु लेट यू और मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका टाइम अब आ गया. वो मूवी देखी होगी आपने, अपना टाइम आएगा. क्या हर साल रियल एस्टेट रिटर्न देता है? हर साल कमोडिटीज रिटर्न देता है? हर साल शेयर मार्केट रिटर्न देता है? कोई भी चीज इज नॉट फिक्स्ड. हो सकता है कभी 3-6 महीने कौन सा सेक्टर, कौन सा असेट क्लास रिटर्न देगा, कभी कौन सा नहीं देगा. सो यू शुड बी डाइवर्सिफाइड, यू शुड इन्वेस्ट रेगुलरली, यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड वेट कि ये सेक्टर का टाइम आया है. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज अ बुल मार्केट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट. सो इफ यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक मार्केट रेगुलरली, इफ यू take the entry at the right time, then you will make the most of the markets in next 1 year, 2 year, 3 year, 5 year or 10 year down the line. If your timing is wrong, you will not make money, or you will have to wait for a longer period of time to make money. So to make money in the markets, your direction has to be right. This point is clear? Next point पे चले. महाभारत का ये सीन, अश्वत्थामा, क्या नाम है? अश्वत्थामा, ये कौन है? वो भी सेम है. हाथी है, वो दिख रहा है, आदमी पुरुष है उसका. अश्वत्थामा मारा गया. क्या रूमर थी? हाथी मारा गया. अश्वत्थामा मारा गया. और ये रूमर सुन के क्या हुआ था? द्रोणाचार्य ने माना ये सच है, जबकि ये रूमर थी, और एंड में क्या हुआ? गला कट गया. दिस वॉज महाभारत. नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, कैन एनीवन लिंक इन द स्टॉक मार्केट? I got Bombay Railway 300 rupees. Now it is selling in 750. ऐसी बहुत सी रूमर आपको मार्केट के अंदर सुनने मिलेगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रूमर के अंदर आपको नहीं फॉल होना है, रूमर्स में आप लोगों को नहीं जाना है. अगर आप लोग रूमर्स में जाओगे तो क्या होगा? सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, मार्केट्स के अंदर इतना वाइड मार्केट है, इतनी न्यूज है. यूएस में कुछ होता है, चाइना में कुछ होता है, इंडिया में किसी सेक्टर में कुछ हो रहा है, किसी कंपनी में कुछ हो रहा है. तो उन सब के चलते कभी कोई न्यूज आएगी, कभी कोई रूमर आएगा, उसके चलते वॉलिटिलिटी होगी, अप्स एंड डाउन होंगे. बहुत से छोटे स्टॉक्स में रूमर आती है, जिसकी वजह से स्टॉक भागते हैं. बट एंड रिजल्ट इज व्हेन दे स्टार्ट हिटिंग लोअर सर्किट, वो कंटिन्यूअसली नीचे जाना स्टार्ट होते हैं. तो यू शुड नॉट फॉल प्रे इन दी रूमर्स. रूमर्स से दूर रहिए. क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंपनीज में जाइए, जिनके अंदर बिकॉज ऑफ सच न्यूज इफ द फॉल कम्स यू कैन इन्वेस्ट. अगर आप रूमर बेस्ड स्टॉक्स में काम करते हो, सबके पास सबके सोर्स होते हैं, हर किसी का सोर्स स्ट्रांग है. यहाँ पे कोई ऐसा जिसका सोर्स स्ट्रांग नहीं है? कोई ऐसा जिसका सोर्स स्ट्रांग नहीं है? थैंक यू सर. लेकिन हर किसी का सोर्स स्ट्रांग है. जिसके पास भी न्यूज आएगा, तगड़ा न्यूज आएगा. कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा न्यूज खराब है तो बाय कर. सो आप सोचिए, 400 लोगों में या 450 लोगों में अगर हर किसी का सोर्स स्ट्रांग है, तो 8 से 10 करोड़ अकाउंट होल्डर्स का सोर्स कितना स्ट्रांग होगा? और हर सोर्स यही बोलता है, ये स्टॉक 100 का 200 होगा, 100 का 400 होगा. बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इजी. अगर हर किसी का सोर्स स्ट्रांग है और श्योर ही है
तो फिर हर कोई मार्केट से पैसा कमाए। मार्केट से पैसा कमाने के लिए यू नीड थरो स्टडी। रूमर बेस्ड काम अवॉइड करना चाहिए। यू शुड, इफ यू फाइंड योर सोर्स स्ट्रॉन्ग, इफ यू सी कि आपके सोर्स में दम है और वो स्टॉक चलते हैं, देन यू शुड ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस, बिकॉज जब वो रूमर फेल होगी ना तब वो स्टॉक खराब हो जाएगा और वन साइड नीचे जाएगा। आर यू विथ मी? स्लाइड सबको समझ में आ रही है? अभी और 5-6 स्लाइड है। इट विल टेक अनदर 30 to 45 minutes. बड़ा लंबा टाइम। Are you ready? थोड़ा कम टाइम कम कीजिए। Thank you very much, sir. But ये रूमर है। We are towards the end of the presentation. Last 10 मिनट मुझे आपके और चाहिए। 2-3 पॉइंट सिर्फ बचे हैं, उनको आप अच्छे से और समझिएगा। जो अभी तक समझाए उनको गो थ्रू करते रहिएगा और इनको रख के रखिएगा। ये सारी चीजें आपको मेरी याद आएगी जब जब आप मार्केट देखोगे, जब जब आप महाभारत देखोगे और जब जब आप इन्वेस्ट करोगे। What do you mean by thorough study? सर मैं एंड करके फिर अपन डिस्कस करेंगे। Shall I move on to next point? Yes. Yes, दुर्योधन। Now दुर्योधन के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें अच्छे से राज भी कर सकते थे और कुछ इनके साथ होता नहीं। क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी? 5 गांव। वेरी गुड। सिर्फ 5 गांव दे देते, पूरा महाभारत कुछ भी नहीं होता, ये भी राज करते और बाकियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या किया इन्होंने? एक सुई के जितनी भी नौक नहीं, सुई के नौक के जितनी भी भूमि नहीं थी और एंड में महाभारत हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीड। ये महाभारत में हुआ कि ग्रीड की वजह से अपनी जान गंवानी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है? रोज होता है। So you need to control the greed, and at the same time, when others are fearful, you need to show courage. जो कि थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, 8,000 जब इंडेक्स आया तब सब डरे हुए थे, तो कुछ लोगों ने बाई किया, they made money from the markets. 18,500 जब मार्केट आया तो सब 20,000, किसी के स्क्रीन पे तो शायद 21,000 दिख भी गया था। तो यस, तो ग्रीड था, तो ग्रीड के चलते लास्ट 1 साल से वो हाई भी नहीं टूटा। सो वी नीड टू बैलेंस दिस ग्रीड, दिस फियर। अगर आप ग्रीडी नहीं हो, एट द सेम टाइम आप फियरफुल, जब सब हो तब आप इन्वेस्ट करो, यू विल मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। यू विल मेक मोर मनी कंपेयर टू अदर्स हु आर मेकिंग इन द मार्केट्स। सी, कोई तो ऐसा है मार्केट में जब सब डरे हुए होते हैं तब इन्वेस्ट करता है। आप लोग मानते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है? तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कभी तो छोटे से स्टार्ट हुआ होगा। राकेश झुंझुनवाला डे 1 से बड़े थे, am I right? See, there are n number of examples which I can give, जिन्होंने बहुत बेस से स्टार्ट किया और मार्केट्स के अंदर स्लोली रहे, 30 40 साल तक रहे, तब जाके पैसा। ठीक है, मैंने 200 में रिलायंस लिया था, तो 4-5 बोनस खा के आज भी है, वो एक वेल्थ बिल्ड हुई। पर जो आप कह रहे हैं कि एंट्री करना, वो नहीं आते हाथ स्टॉक हमारे जैसे इन्वेस्टर के आते हैं। Yes, इसीलिए you need the expert guidance. इसके लिए you need the professionals who can guide you regularly. अभी चॉइस के साथ जुड़े हैं, होपफुली हो जाएगा। तो अभी अपन एंड पे आएंगे उस पर। तो मार्केट के अंदर you need professional guidance at every given point in time. नॉर्मल इंडिविजुअल क्यों नहीं कमा सकता मार्केट से? बिकॉज वो अपनी रूटीन लाइफ में बिजी है।
हम रोज मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते। हम हमारे प्रोफेशन में बिजी है। वी हैव मनी बट we don't make money from the markets. Why? Because we are not able to give the time. We are not able to understand the market. We are not able to take timely entry. We are not able to exit. Patience नहीं होता है, रूमर आती है, घबरा जाते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो सब चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेगी। अगर आप एक एक चीज को पॉइंट नोट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें मैं कर नहीं रहा हूँ, इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू मेक दैट गुड मनी विच अदर्स आर मेकिंग। If you are free and if this is your full fledged profession, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। अगर आपका ये full fledged profession नहीं है तो you will realize कि ये सब चीजें मैं मिस करता हूँ जिसकी वजह से मुझे मार्केट्स में पैसा नहीं बनता है। आप लोग ये सारी चीजें नोट करके स्टार्ट करना चालू कीजिए, फिर देखिए कैसे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पैसा कैसे बनता है। This greed and fear point is okay? अब हम प्रेजेंटेशन के उस पड़ाव पे आ गए हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स रिकॉल करने का जरूरत है। आई होप लिखे होंगे आप लोगों ने पॉइंट्स। कैन यू रिकॉल द पॉइंट्स? कौन कौन से पॉइंट्स थे? डिसिप्लिन, फोकस, गोल, यस। सबसे पहला पॉइंट एंट्री एग्जिट, रूमर, स्टॉप लॉस, रिजल्ट, ओवर लिवरेज, वॉलेटिलिटी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, ग्रीड, फियर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये सारे रॉन्ग डायरेक्शन, ये सारे पॉइंट्स क्या हम फॉलो कर सकते हैं हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इन मार्केट्स? अगर अभी क्या सब हाँ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कल रूटीन लाइफ स्टार्ट होगा तो दैट इज नॉट इजी टू फॉलो ऑल द पॉइंट्स। अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है? अब तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स एक तरफ, अब जो मैं स्लाइड बताने जा रहा हूं वो अकेले एक तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम लोग। कौन है ये? गुरु। ये एकलव्य। अभी देखिए द्रोणाचार्य क्यों मरे? क्या किया था? तो उसके पीछे अलग लॉजिक है। नाउ दिस व्हेन इट कम्स टू दिस स्लाइड, एकलव्य ने कहां से सीखा? कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन सीखना था। तो उसने जो उस टाइम के जो एक्सपर्ट थे, उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट था, उन्होंने एक्सपर्ट से सीखा। सो बॉटम लाइन इज, इफ यू आर एबल टू फॉलो ऑल द पॉइंट्स, you should follow all the points, you should invest in the market, you should go through the market। अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो आप लोगों को क्या करना है? Either become expert, either become expert or अब आप लोग के बीच में जो सवाल आ रहे थे वो अब इसमें कृष्णा की स्लाइड लगाइए। अभी आएगी सर एंड में, जब वो बांसुरी बजेगी ना तब याद आएगा कि पूरी महाभारत में रोल कृष्णा का है। और वही रोल आपको हमेशा वही रोल आपको ढूंढना है और उन्हीं को फॉलो करना है। सो बॉटम लाइन इज, either become expert or hire an expert। See, there is no harm in hiring an expert if you are able to give time in the markets, give time, study hard, homework कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, डिसिप्लिन रखिए, फोकस रखिए। सी एक एक पॉइंट सब कोरिलेट कर रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर आप ये टाइम नहीं दे सकते, यू शुड हायर एन एक्सपर्ट। आई होप द प्रेजेंटेशन इज क्लियर।
म्यूचुअल फंड लास्ट पॉइंट हायर एक्सपर्ट में दोबारा बोलिए थोड़ा। अभी मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। फाइनेंशियल मार्केट में आपका चॉइस है। फाइनेंशियल मार्केट में आपका चॉइस जो आपके पैसे और आपका पूरा ख्याल रखे। इस बाजार में ब्रोकर तो बहुत है, पर आपका चॉइस ऐसा जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। तो आइए इस बुल रन में चॉइस ब्रोकिंग के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक ही पॉइंट में आ रहे Okay, thank you everyone. Thank you सुरभ सर फॉर द वंडरफुल सेशन। आई होप आप सभी ने नोट पॉइंट्स किए होंगे और उसको डेली फॉलो करना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चॉइस से जुड़ते हो तो सुनील जी के जो डेस्क है उसकी तरफ से वेबिनार्स अरेंज होते हैं क्लाइंट्स के लिए एवरी मंडे एंड थर्सडे। मंडे आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 11:30 बजे हमारी तरफ से वेबिनार होता है। इनके डेस्क से बताया जाता है कि जो वीक आने वाला है वो वीक कैसा होगा मार्केट में। और थर्सडे जो एक्सपायरी वाला दिन होता है, एक्सपायरी के दिन आपको मालूम पता है कि एक जो थर्सडे वाली एक्सपायरी कैसे होगी। तो बिकम अ क्लाइंट्स ऑफ दी चॉइस एंड इनकी जो डेस्क की जो वेबिनार है उसको एंजॉय कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जब ने किट दिया है उसमें NSDL का एक बुकलेट है, अगर छोटा देखोगे तो उसके लास्ट में फीडबैक फॉर्म है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी को कि फीडबैक फॉर्म फिलअप करके प्लीज़ अपने जो चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव है उनके हाथ में हैंड ओवर कीजिए। दूसरी जो लास्ट चीज़ है, अभी जो हमारे जो गेस्ट आए थे उनको मैं पंकज जी को, ठीक है, तो जो गेस्ट आए थे उनके लिए धन्यवाद सर, आप आए और आपका टाइम दिया। इवन आप सभी लोगों ने पंकज जी की इनविटेशन पे और हमारी चॉइस की इनविटेशन पे यहाँ पे आए, टाइम निकाला। थैंक यू। चालू हो गया है, आप लोग प्लीज डिनर लेकर के ही जाइए। थैंक यू।